is that Lamb of God, and his name is Jesus. त्याचे नाव जावन आसा जेजू ख्रिस्त, जाणें आपले रगत वारयलें आनी ताच्या रगता उदेशी मनशाक सुटका मेळ्ळी. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Malice and wickedness. See, we treat it very lightly. We sit here and we cover our sins. Church is a very good place to hide. हेलो, सोचो कि आप घर में जाते हैं, बाहर से आए घर में जाते हैं, you're getting a very bad stink in the house. Think that you're getting a stink, maybe a slight stink, not so bad, but you come, वास येता, कसलो तरी वास येता. I'm getting a strange smell in the house. A stink is coming in the house. You don't know, you search. Oila oil, top, you know, oila oil. You're just searching and it's like you're not finding anything. Next day you go out somewhere, you come back again, the stink has increased. Oh, and it's coming from your kitchen. किचन में कुछ वास आ रहा है, पता नहीं क्या है, इधर देखते उधर देखते, लेकिन आप पूरी तरह ढूंढते नहीं है, इधर देखते उधर देखते, लेकिन पता नहीं कहाँ से. सब तो साफ दिखता है. थर्ड डे यू कम, यू गो आउट एंड यू कम, स्टिंक तो बढ़ गया है, बदबू आ रही है, ज्यादा बदबू आ रही है, तो तू क्या करेगा? उधर ही बैठेगा और बदबू में ही जिएगा. You're going to sit in that stink, you're going to cook in that stink, you're going to eat in that stink? No. अब क्या करेगा? अब ढूंढेगा, निकालेगा सब बाहर. So you search everywhere and it's not an animal stink. Okay, even if it's animal stink, you'll find it. And then you go into the vegetable section, you go into the onions, and you go into the potatoes. You find one potato on top, it's looking very nice. And you see down, black, काला हो गया बटाटा. So अब निकालने को जाता है, फुस हो जाता है. हाँ? कितने लोगों को ऐसा हुआ है? फुस हो जाता है, फुस करके पास आ जाता है. And then when you go to remove it, oh my God, it's full of worms, उसमें कीड़ा है और इतना बदबू और आती है उसकी. It's so bad, the stink now, because you have crushed it, it's stinking, and you take it out. क्या करेगा तू? हाँ, वो स्टिंक हो रहा है, रहने दे उसको यहाँ पर ही. हाँ, साथ में दूसरा बटाटा है, साइड में देखते हैं तो ये भी काला हो गया है, वो भी काला हो गया है, 2-3 है यहाँ पर अच्छा है. क्या करेगा आप? ये अच्छे वाले को आप साइड में रखेगा और बुरे वाले को क्या करेगा आप? वो निकाल कर आप बाहर फेंकेगा और वेसल को आप साफ करेगा, क्लीन करेगा. अपने किचन में बास जो आ रहा है वो चला जाएगा. राइट और रॉन्ग? सो द सेम वे इज सिन. कमीर भी ऐसा है, पाप ऐसा है कि पाप अगर अंदर है और इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, इट्स गोइंग टू ग्रो until it will stink. It will show on your face. आपका फेस का आप एक्सप्रेशन लोगों को पता चलेगा. Something is stinking in this guy, something is stinking in this person. चेहरे पर पता चलता है, अंदर क्या बात होती है. बटाटा सड़ा हुआ है अंदर. नहीं, okay, because y'all don't like theological preaching. I can see you like childlike preaching. Okay, practical. Amen. Hallelujah. So what would you do? You take it out. You're not going to be comfortable with sin also.
लेकिन अगर आप पाप के साथ कंफर्टेबल है, दिस इज व्हाट पीपल डू, दे गेट कंफर्टेबल इन चर्च. Church is a good place to hide. Everybody is smiling, everybody is having a Bible, everybody's got a religious attitude. Oh, praise the Lord, praise the Lord, how are you? अंदर पटाटा सड़ा हुआ है. They're hiding, stink. You know, some people get the stink from out. थोड़े लोगों को बास मारता है, लेकिन वो आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अच्छी तरह साबुन लगाकर मुंह धोते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छा आते हैं, पता नहीं, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है अंदर. Purge out the old leaven that you may become a new lump. तो घर का मालिक क्या करता था? घर में जाकर बत्ती को लेकर अंदर जाता था, कोने कोने में ढूंढता था कहाँ है ये खमीर. क्यों? परमेश्वर ने कहा था. Did they understand it? They didn't understand it. Do you understand it now? उनको पता नहीं था, वो उनको समझ में नहीं आया था ये परमेश्वर ने क्यों कहा था. लेकिन क्या आपको पता है? क्या आपको मालूम हुआ? खमीर को निकालना है. You got to remove it. Now, how do you do it? How do you do it? First thing is, you recognize it is there in you. Don't cover it. बटाटर के ऊपर कपड़ा मत डालना. कोई आ रहा है बाहर से, कोई आ रहा है विजिट करने को आ रहा है, तो उसके ऊपर कपड़ा डालता है बटाटर के ऊपर, उसको कवर करता है, उसको बाबू बाबू करके उसको, हाँ अच्छा होगा क्या? नहीं ना, निकालना है. सो यू गॉट टू टेक इट आउट. फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज योर स्टिंकिंग इनसाइड. गुस्सा है आपके अंदर, हाँ है, रिकॉग्नाइज इट. यू गॉट अ वीकनेस इन यू, recognize it. Whatever it is, sexual immorality, recognize it. You got lust in you, lust of the flesh, recognize it. जान लो कि है मेरे अंदर, है, मुझे निकालना है. So कैसा निकालेगा? How is that you going to remove it? By repenting. By repenting. पश्चाताप करके उसको बाहर निकालना है. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to stand up, then I will tell you the rest. Hallelujah. See, my dear people, we want to have, everybody wants to have a Happy New Year, Prosperous New Year. इस साल में मुझे लॉटरी लगनी है, इस साल में मुझे बाहर जाना है, इस साल में मुझे लंदन जाना है, मुझे यूएस जाना है. सब कुछ आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा ही रखा है, बुरा नहीं रखा. अच्छा ही रखा है, बुरा नहीं रखा. लेकिन आपके हृदय को साफ करो. घर का मालिक बत्ती को लेकर यहां वहां जा रहा था ढूंढने के लिए. बत्ती है परमेश्वर का वचन. इफ यू हैव दिस, सी यू कैन नॉट सी योर सिन विदाउट दिस. ये है लाइट. बोलो वर्ड, बोलो वचन. ये है वचन और ये है उजाला, ये है रोशनी. जब भी आप कलीसिया में आ जाते हैं, परमेश्वर का वचन आ जाता है, डोंट से ओ माका पॉइंट मत्ता, ई माका संगता, ई माका. डोंट से लाइक दैट. से यस लॉर्ड, यू आर स्पीकिंग टू मी, दिस इज फॉर मी. हालेलुया, दिस इज फॉर मी. एंड डोंट इवन से हाँ ये तेका. नो, ये उसके लिए, ये आज काश ये आज यहाँ पर होता, उसको ये वचन लगता. ऐसा भी मत कहो. ये आईना है. जब भी आप परमेश्वर के घर में आते हैं, कहाँ भी जाओ, परमेश्वर का सेवक जब वचन देता है, ये वचन रोशनी है. दिस इज द लाइट. ये रोशनी को लेकर आपके घर में जाओ और ढूंढो और देखो घर के कोने कोने में क्या लिखा है, क्या है आपके घर में, क्या है आपके मन में, क्या है आपके दिल में. Do you have malice in your heart? Do you rejoice at the fall of somebody else? Is your mind so wicked that when you see people prospering, you don't like it, you get jealous of them? जब भी परमेश्वर किसी को blessing देता है, आपको जलन होती है. That is wickedness in you. ये अच्छा नहीं है. This is wrong. And I'm telling you, every one of us have been like this. हर एक के अंदर सड़ा हुआ बटाटर है. और उसको निकालना है. First thing you do is you examine yourself. अपने आप को जांच लो. वचन के द्वारा जांच लो. अंदर एग्जामिनेशन करो. कोने कोने में अपने दिल में. अभी इसी वक्त, टुडे यू आर गोइंग टू डू इट. टुडे इफ यू आर गोइंग टू एंटर द ईयर,
if you are going to enter the year and find everything that God has prepared for you, you have to examine your heart and check whether you are right with God or not. अगर इस साल में आप जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आपके हृदय को आपको साफ करना है। कितने लोग इस साल में आज तक आज का दिन उन्होंने नहीं देखा। हैप्पी न्यू ईयर बोला था, लेकिन आज वो हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए नहीं रहे। यू हैव टू थिंक अबाउट इटर्निटी। आपको सोचना है कि आप यहां पर नहीं रहेंगे। आपके हृदय को साफ करके, अपना हृदय परमेश्वर का मंदिर है ये सोचकर ये मंदिर को साफ कीजिए, गमीर को निकाल दीजिए, एक नया सृष्टि बन जाइए। इससे आज इस समय, टुडे एट दिस टाइम, be new, and when you get step into the year, you are stepping with the newness of heart and mind. We all like prophecies that are good, to say for us, somebody says, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। You go to places like you like that thing, हाँ, को अच्छा लगता है। God is doing something in your life, I love it. If I come to you and say, मुझे आपके अंदर पाप दिखाई देता है, what? Who are you to tell me? I don't like you. I don't want to come to your church. क्यों? परमेश्वर का अधिकार नहीं है हमारे हृदय में पॉइंट करने के लिए? अगर हम उसको मालिक कहते हैं तो मालिक को अधिकार नहीं है हमारे दिल को जांच करने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमको दिखाने के लिए कि हम गलत हैं? परमेश्वर का अधिकार नहीं है? और क्या परमेश्वर ने अपने सेवकों को यह अधिकार नहीं दिया है कि वचन लेकर यह प्रचार करो? Hasn't God given us the authority to His servants to speak the word of God and call sin as sin? No compromise. Say no compromise. We are not compromising. Apostle Paul says, do not compromise with sin, because if it is there, देखो कड़वाहट अगर आपके अंदर है तो ये जड़ बढ़ जाएगा. It's going to go. You think people are going to keep quiet? If I have something against you, I'm going to keep quiet. If I don't forgive you, it turns into bitterness. अगर मैं तुझे माफ नहीं करती तो कड़वाहट के जड़ अंदर चले जाते हैं. If I don't like her, and I'm going to talk bad about her now. I have to talk bad because I have not forgiven her. मैंने उसको क्षमा नहीं किया तो मैं उसके बारे में बुराई करूंगी ना? Obviously, क्योंकि मैंने माफ नहीं किया तो मेरे दिल में बुरा है उसके लिए, तो मैं इसके बारे में उसको कहूंगी कि इन्होंने ऐसा किया है। मेरी कड़वाहट के जड़ अंदर गए हैं तो मैं आपको बोलती हूँ, आपके अंदर कड़वाहट का जड़ आ जाता है उसके और from here it will go here, from here it will go there, from here it will go. This is what khamir does. This is what yeast and the leaven does. This is what Apostle Paul says in the book of Hebrews 12 verse 14. He says, be careful lest the root of bitterness it will grow. Cut off that root, uproot it. Kaadu nudoi taka, bairudoi. They vadong dinaka, because it's going to corrupt somebody else. You don't know how many of you are getting corrupted by listening to gossip of somebody else. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And then people become negative and the whole church becomes negative. No, we want this house to be the house of God. We want this house to be the house of the presence of God. हम चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया अपनी दुल्हन है, कलीसिया पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए. Hallelujah. God has given you the garments of righteousness and you got to keep that garment pure and spotless. Remove the leaven of malice and wickedness from within you. Take out that anger today. Allow the Lord to take His word and go into your heart. So पहला चीज आपको करना है, examine करो अपने आप को. Already you know, आपको पता है आपके अंदर क्या है जो आपको निकालना है. अगर नहीं निकालते तो बढ़ जाएगा. It's going to grow. Number 2,
How will you remove it? पश्चाताप करो. Realize it. Ask for forgiveness. The Bible says in 1 John, if we confess our sins, He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है, क्षमा करता है. हालेलुया. This is how you remove it. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप नई सृष्टि बन जाते हैं. You become a new creation. Open your hands. Come on. Open your hands. Close your eyes. Close your eyes. There are people over here. God wants to bless you in this coming year. God wants to bless you right now. Remove the leaven from within you. खमीर को निकाल देना. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको दिखा दिया है. आपके घर के कोने कोने में, आपके हृदय के कोने कोने में, मन के कोने कोने में क्या है? गुस्सा है, जलन है, कड़वाहट है. What is there right now? Is there pride in you? ये तो गमीर है जो फरसी लोग यूज करते थे. क्या घमंड है आपके अंदर? परमेश्वर आज आपको नम्र बनाना चाहता है. I said God likes to dwell into places. One, His home is in heaven. He dwells in heaven. And second, He dwells in every heart that is a humble heart. वो नम्र दिल में रहता है, घमंड वाले दिल में वो नहीं रहता है. Remove the pride from you, the lust of the flesh. Remove it. Sexual immorality, pornography, masturbation. Come on, let God check you out. Remove everything that is coming in the way of God. Addictions to anything. Lord, I don't want it to grow. I want it to be uprooted now. मैं नहीं चाहता है कि ये बढ़ जाए मेरे जीवन में. आज ही मुझे निकालना है. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give me minor chord. Thank you, Lord Jesus. Neha, come here. This moment I'm calling people. You want to come and surrender your life to the Lord right now. Surrender your life to the Lord right now. अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में रखो right now. पश्चाताप करो, साफ हो जाओ, खमीर को निकालो, पुराने वाले खमीर को निकालो. यीशु मसीह हमारा मेमना है जो हमारे लिए मारा गया है. He is our Passover lamb. Apostle Paul is saying, let us keep the feast of unleavened bread, not just one day. लेकिन ये उत्सव आत्मिक द्वारा, आत्मिकता में ये पूरी जिंदगी भर हम ये मनाएंगे कि हमारे अंदर ये पाप का खमीर ना रहेगा. पवित्र मुझे बना ले प्रभु. Come on. शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु. Come on church. पवित्र मुझे बना ले प्रभु. शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं. शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर. शरीर I call people to leave your chairs and come in the front and bow before God. Bow before God. Leave your chairs. अपने कुर्सी को छोड़कर आगे आ जाओ. परमेश्वर के सामने क्षमा मांगो इस समय. विजय में पाओ, जय में पाओ, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो. Come on, tell the Lord. तेरा सदा
पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। अपने हाथों को खोलिए। Just open your hands before the Lord. We know each one of us have got something in our hearts that should not be there. हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है जो सिर्फ परमेश्वर को पता है। और आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे नज़र को खोली है, तो आज हम क्षमा मांगेंगे, पवित्र बन जाएंगे उसके लहू के द्वारा। वो कहता है अगर हम कबूल करें तो कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, I pray each one this moment, each one will receive from you. Come on, each one. हर एक अपने अपने शब्दों में परमेश्वर के साथ बात कर इस समय। बोलो कि मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे शुद्ध करो प्रभु। ये मेरे अंदर जो है मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु, निकालो मेरे अंदर से, मुझे पवित्र बना ले प्रभु। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि ये जो है मेरे अंदर वो गलत है, ये जो मैंने बात किया है गलत है, ये जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। परमेश्वर पिता मेरे मन को बदल दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, ताकि जो कुछ तूने आशीष मेरे लिए रखी है तो मैं आगे बढ़ूं पिता परमेश्वर, और वे आशीष में पाऊं। जो अभिषेक तूने मुझे दिया है वो अभिषेक में और भी मैं बढ़ूं, तेरी महिमा में और भी मैं बढ़ूं प्रभु परमेश्वर। मुझे इस्तेमाल करो तेरे राज्य के लिए परमेश्वर। ये है मेरा दिल, ये है मेरा मन, तेरी रोशनी मेरे मन पर डाल परमेश्वर। हालेलुया। ये मेरा गुस्सा जो है मेरे अंदर, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे अंदर जो कड़वाहट है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। मेरे अंदर ये जलन है, मेरे अंदर ये जो कुछ दुष्टता है, मैं क्षमा मांगता हूँ इस समय। मैं तुम्हारी हूँ, तू मेरा मेमना है, परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। परमेश्वर का मेमना, मेरा उद्धार करता, मेरा सेवियर मास्टर तू ही है परमेश्वर। मेरा राजा तू है। मुझे क्षमा करो परमेश्वर, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। Forgive me Lord for all the times I've been angry, for all the times I've kept hatred and bitterness in my heart against people, for all the time I've kept malice in my heart against people. Oh God, I've thought evil about people. Forgive me Lord. I am your child, I'm your son, I'm your daughter. Oh God, your word says that each day I'm transformed into the image of your son Jesus Christ. हर दिन मैं यीशु मसीह की तरह मैं बन रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ तूने मेरे लिए रखा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और आज मेरे हृदय की तैयारी तूने की। You have prepared my heart to God to receive from you, because if my heart is right then everything will be right. Oh God, if my heart is right then my worship will be acceptable to you. अगर मेरा दिल सही है तो मेरी आराधना तू कबूल करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, और मेरे कदम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर एक नए साल में, और नए साल में तेरी महिमा में देखूंगा परमेश्वर। तेरे अग्नि को तू उंडेल देगा मेरी जिंदगी में। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।